दोस्तों आज है तारीख 28। आज का दिन स्टार्ट करते हैं होटल के ब्रेकफास्ट से। ये ब्रेकफास्ट है और आज का प्रोग्राम है हमारा जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाना। बने रहिए, आपको दिखाएंगे जेम्स बॉन्ड। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पोर्ट पे, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए। ये लोग पहले एक लाइट स्नैक्स के साथ में एक ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हैं। मैं जूस पी रहा हूँ, वाटरमेलन। अब हम जाएंगे, जाने के बाद वहाँ की एक्टिविटी आपको दिखाएंगे। बट अभी तक का पूरी जर्नी हमारी ऑसम जा रही है। थैंक यू। You can try, and after that you can say with everyone in Thai. Good morning, ladies and gentlemen. สวัสดีครับ Alright. Welcome everyone to our company, Lalalin Marlin. Today we're going to James Bond. James Bond or PP. James Bond. Okay, we go to James Bond or Phang Nga Bay. Phang Nga Bay we have 42 islands. Oh. But we have only 4 stops in Phang Nga Bay, 1 stop in Phuket. Totally we have 5 stops for our program for today. Program gonna start from here, take time about half an hour, not too long way. Half an hour we're gonna arrive to Panak Island. Panak Island we go sightseeing. If good weather or sometime we walk inside the cave. Today maybe we walk by ice cream cave. Ice cream cave, some area is a little bit sleepy and muddy. Okay. Yeah. If you wear the normal slipper or your shoes, it's like I recommend you take off when we arrive there. I will let you know again. For inside the cave, why they call ice cream cave? They have limestone look like ice cream. Over here. Not mean I give everyone ice cream inside the cave. They have ice cream cone. You can take photo like whole ice cream, lick ice cream if you want. It's really nice. Actually sightseeing about half an hour. Half an hour, and after that, we go to next stop. We go to Hong Island over here. Hong, actually in Taiwan, it means room. They have many caves look like a room. You get in by canoe. One canoe can sit for 2 or 3 persons together. For canoe, we already paid for you. No need to pay more. But if you enjoy that, you can give them some tip like 20, 50 or 100 baht. Depend on you. Depend on you. That way. If some people, oh, I don't know how to paddle. Don't worry, we have pattern man for you. Help you to pattern. Go inside the cave. They have limestone, very beautiful. Some area look like heart, some area look like an elephant, some area look like a monkey. But you need to be a little bit imagine, right? Yeah. Take time only half an hour or 40 minutes inside the cave, inside the Hong Island. Why? Because some cave, some area full tide, we cannot entrance. Some area very low tide, also cannot entrance.
तो दोस्तों अब बात कर ली जाती है, हमारी स्पीड बोट हमें एक तो ऐसे आइलैंड पे लेके जाती है जिसको हम बोलते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। और इस जेम्स बॉन्ड आइलैंड के पीछे कहानी है दोस्तों। 1974 के अंदर जेम्स बॉन्ड ब्रांड की सीरीज़ की एक मूवी यहाँ पे बनी थी, अ मैन विद ए गोल्डन गन। ठीक है, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। और दोस्तों वो शूटिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद से टापू का नाम ही चेंज हो गया और इस टापू का नाम रख दिया जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यहाँ पहुँचते ही मतलब एक ऐसी चट्टान दिखाई देती है जिसे कोहू टापू कहा जाता है। अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कोहू टापू के नाम से तरह लगता है, बहुत सुंदर। आप देखो ना, ये रहा, इसी को हम जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। चारों तरफ चट्टानें हैं, बीच में ठहरा हुआ सा पानी है। ठीक है, और जो चट्टानें हैं उनको खोऊ खाऊ फिंग कान के नाम से इस आइलैंड को बोलते थे। और इस आइलैंड पे घूमने के लिए इन्होंने हमें 45 मिनट दिए। वही बता रहा था कि यहाँ पे मूवी का जब ये हुआ था तो ये गन लेके वो एक पोज आता है ना जेम्स बॉन्ड का, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाला। तो इस पोज पे वो जेम्स बॉन्ड खड़ा होता है और ये मूवी यहीं बनी थी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे शॉप्स का। तो यहाँ पे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, इवन यूटिलिटी एरिया भी है। यहाँ पे आपको वॉशरूम जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो तो एवरीथिंग वाज पेड। बट ठीक है, ज़रूरत की अगर चीज़ें मिलती हैं पैसे दे के भी तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मनमोहक एकदम वो था। अभी देखिए कुछ शैतान बच्चे यहाँ पे स्विमिंग के लिए कूद रहे हैं। एक बच्ची गई, दूसरी बच्ची गई और तीसरे हमारे मास्टर साहब आएंगे और उनका तो मतलब डाई लगाने का तरीका अलग है। ये लो भाई कूदो धप। तो ये कहानी है इनकी, तो बच्चे एंजॉय करते हैं। अब हम जा रहे हैं पानी गांव। पानी गांव ये जहाँ एक टापू पे लकड़ी के बने कई खूबसूरत रेस्टोरेंट की तरह है। यहाँ पे हमारे इवेंट मैनेजर ने बुफे में लंच की व्यवस्था की। आप यकीन मानो बड़ा अच्छा लंच इन्होंने प्रोवाइड करा। यहाँ पे रीजनल फूड, थाई फूड और कुछ ऐसे कॉमन फूड भी थे जो हर कोई खा ले। तो आप अगर आप देखिएगा अंदर, आप इतना सुंदर ये माहौल है यहाँ पे और कई सौ लोग एक साथ खाना खा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा है ये। इवन आप ये लगा लो, जो मैं उस टाइम पे देख रहा था जब भीड़ थी यहाँ पे, करीबन 250-300 लोग थे जो खाना खा रहे थे। और हमारे इवेंट मैनेजर मिस्टर ताई, ये रे भाई साहब, ये वाले, इन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे कम कपड़े पहन के ना जाएं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ में थे कुछ लोग, उनको उन्होंने थोड़ी बताया था कि ये पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है और बिकनी यहाँ पे अलाउड नहीं है, शॉर्ट क्लोथ्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये इनकी अपनी धारणा है, अगर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ से निकलने के बाद अगला जो आइलैंड था वो था होंग आइलैंड। समुद्र के अनंत विस्तार के बीच आप एक सुंदर और निर्जन द्वीप पर होते हैं जहाँ बोट से उतर के आपको कयाक पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों आप देखो, येलो कलर की मेरी कयाक, ज़्यादातर वहाँ येलो ही थी। तो और फिर शुरू होता है हमारा पहाड़ियों के बीच ठहरे हुए पानी में कियाकिंग का खूबसूरत सिलसिला। तो बोट को तो बोलते हैं कयाक और बोटिंग करने को बोलते हैं कियाकिंग। बहुत ज़बरदस्त सीन था, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी था, चारों तरफ हमारे पहाड़ थे और पहाड़ भी हमारे ग्रीन थे, प्लांट थे उनके ऊपर। कयाक पे करीब आधा घंटा का यह सफ़र वाकई में मेमोरेबल था। मैं तो नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया ही नहीं। और इस कयाक पे 3-4 लोग आराम से जा सकते हैं। और कयाक आपको पहाड़ियों के बीच बनी बेहद संकरी, अभी आप देखोगे आगे, मतलब इतने छोटे छोटे से रास्ते थे, मतलब मैं हैरान है कैसे ये लोग लेके जाते हैं। पटाया नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा, बैंकॉक नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ये मिस मत करना दोस्तों। मैंने आपको जैसे बताया था, देखो कयाक बड़े ही छोटी सी एरिया में, देखो अंधेरा भी हो रहा है, समुद्र के खुले स्थान पे देखो, ये देखो यहाँ पे
बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। मेरी येलो बोट थी, किसी की रेड थी, और वो इतनी सारी बोट जो कयाक हैं मिलके बहुत कलरफुल इन्वायरमेंट दे रही थी। समुद्र का पानी हरा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर ये सारे कलर्स। कई बार तो आपको ना ऐसी पहाड़ियों के बीच से गुजरना होता है जहां आपको कयाक पूरी तरीके से लेटना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो आपका शरीर टकरा जाएगा। और जब अचानक कई बार तेज लहर आ जाती है तो पूरी डगमगा जाती है, ऐसा लगता है पलटी, लेकिन पलटती नहीं है। देखो मैंने भी इंजॉय किया। मैंने भी उन भैया से चप्पू, हम तो चप्पू ही बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आई ट्राइड कि ये मैं इसे चला सकूं, तो मैंने चलाने की कोशिश की इसे। बहुत ही मेहनत तो लगती है, बट बहुत इंजॉय इसमें मैं कर रहा था। बहुत सुंदर सी जगह है। तो दोस्तों अगर आए तो ये एक्टिविटी मिस ना करें, ये एक्टिविटी ज़रूर करें। आप देख रहे हो चारों तरफ बोट फैली हुई हैं। तो हर जहाँ पे जितने भी लोग आए सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सबके किसी के साथ पहला एक्सपीरियंस है, कोई पहले आ चुका है। मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस है। बोट में मैं पहले बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बैठा हुआ, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं कयाक में बैठूँ। ये रहे हमारे ड्राइवर साहब जो कयाक चला रहे हैं, और हम इन दस्यों का ये जो सीनरी व्यू हैं इनका हम इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। कई बार तो बोट से बोट भी टकरा जाती थी हमारी। तो ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा था ना, बिल्कुल एकदम ऐसे अंधेरे वाले एरिया में और ढके हुए एरिया में, और जब हम छोटे छोटे रास्तों से निकलते हैं बहुत ही ऑसम व्यूज़ में आता है। अभी आप देखिएगा, आप बिल्कुल एकदम ऐसे नीचे से निकलते हैं, ऐसे लगता है सरना। हर बंदे का यहाँ पे बहुत बड़ा, हर बंदा यहाँ एंजॉय कर रहा था। मुझे नहीं पता ये पहाड़ों पे कैसे छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं, जबकि ये पहाड़ बहुत सख्त भी हैं। पहाड़ चट्टानों से बने हुए हैं। पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा है जो इस तरह से हमें दिखा रहा है। देखो आप, नीचे पानी है, समुद्र है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों पे पेड़ हैं। तो ये इसमें जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बस यही बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये बहुत सुंदर जगह है। आप आओ, ये थाईलैंड में पटोंग में पड़ती है, फुकेट में पड़ती है। आप फुकेट में आएंगे, बाहर मार्केट में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं यार। बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना दोस्तों, 50% से ज़्यादा का मार्जिन होता है। अगर इसके 3500 बोले थे, मैंने 1400 में किए हैं, तो आप ये लगा लो। तो बार्गेनिंग मस्ट है। वी आर इंडियंस, बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बार्गेनिंग करना, क्योंकि वो पहले से ही हाई रेट लगा के रखते हैं। तो 1400 भाट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3200-3300 रुपये। तो हम तो अपनी इंडियन करेंसी में देखते हैं ना। तो वहाँ हमारी अब ये जा रहे हैं वापस, जहाँ हमारी स्पीड बोट खड़ी हुई है, और ये पूरा राउंड कटवा के ले आते हैं, और हम अपनी स्पीड बोट्स में बैठ के फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ अपना वीडियो बंद करता हूँ, और आपको आगे का वीडियो जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता है मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।